Hi everyone. Today I want to talk about PPP, Public Private Partnership. ये यूपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज ऑफन इग्नोर्ड या फिर मिसअंडरस्टूड और पार्टली अंडरस्टूड बाय अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स. हम लोग इसको ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने की एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से पीपीपी एंड हाउ इज इट एप्लीकेबल इन द रियल सिनेरियो इन इंडिया. कब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ और आज किस तरह से हमारे आसपास ये चलता है. आपको किस तरह से हाईवेज में, पावर में, पोर्ट्स में पीपीपी सब जगह विजिबल है. So we'll try and understand, take some examples and make it realistic so that it becomes very easy for you to remember it, memorize it and reproduce it in the examination. तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि पीपीपी का मतलब क्या है. व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अगर हम बिल्कुल क्रूड फॉर्म्स में बात करें तो पीपीपी एक ऐसा मॉडल है जहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट दीज टू सेक्टर्स कम टुगेदर. हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली या एक क्रूड फॉर्म में अगर हम बोलें तो मनी पब्लिक प्रोवाइड करती है बट एक्सपर्टीज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है. But there have been changes in this where the money is also provided by the private sector. The expertise is not necessarily provided only by the private sector. It is also at times provided by the public sector. So there are mixes of it in various forms जो हमें आज दिखते हैं. But अगर हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बात करें, PPP started as a model where the public sector realized कि हम कुछ काम नहीं कर सकते because we do not have the expertise in them. Why not outsource it to the private sector जिसको ये काम करना आता है. For example, bridges बनाना. L&T is a company that knows how to make bridges. वो बहुत सालों से it has been doing this thing only. HDFC knows how to run banks. It understands how to create a good banking system in the country. So this private sector, this private entity has the expertise, has the specialization to do it. Public sector says, why should we do it on our own? Why should we try and create another department जो कि scratch से ये सब सीखेगा when we know that a private sector, a private company exists that can do it. But private sector says, we can do it but we do not have so much money. एक ब्रिज बनाने में 1000 करोड़ लगता है. आप हमें बोल रहे हो एक सिटी में 10 ब्रिजेस बना के दो. We do not have access to 10,000 crores immediately at our disposal. Public sector says, don't worry. I will provide you with the money. You bring in your expertise. Let's create a partnership. In this partnership, let's build this thing. It will be beneficial for you because you can make money out of this. It will be beneficial for us because we can fulfill our responsibility towards the people of social welfare. इस कॉन्सेप्ट से पीपीपी स्टार्ट हुआ. आप इस कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट देख सकते हो when you compare the roads of Bihar versus the roads of Maharashtra. If you have driven through Bihar or Maharashtra, you would be able to easily differentiate between the kind of infrastructure that exists in these two states. बिहार में आपको बहुत ज़्यादा टोल रोड्स नहीं मिलेंगी, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मिलेंगी. That automatically says that the private sector is involved in creation of those roads. और उसका पैसा वो टोल के थ्रू रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इस एक्सपर्टीज के साथ ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया. इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ महाराष्ट्र ओवरऑल एज एन इकोनॉमी हैज बीन एबल टू डेवलप. सो व्हेन यू कंपेयर दीज टू रोड्स ऑफ दीज टू स्टेट्स, यू कैन इजीली फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली पीपीपी से इम्पैक्ट कहां तक आ सकता है. Having understood the meaning, the very basic meaning of PPP, let's now move down and try and understand कि इसका introduction किस तरह से हुआ. Before 1991, PPP was not in news or was not followed by the government of India. But as we started with economic reforms, we understood that we have to, as the public sector, we have to try and conserve our capital. And we have to try and use it only in the areas that are strongly connected with social welfare, जहां पे private sector involved नहीं होगा. But there are a lot of sectors where we as the public sector is still involved, are still involved, and therefore we need to move out of these areas. So 1991 में power sector में कुछ reforms आए where independent private producers like Tata Power were given licenses कि आप किसी एक शहर का पूरा power infrastructure create करो, उसको operate करो, and then after a period of time you can either transfer it to us or you can keep maintaining it.
हम लोग आपसे एक लाइसेंस भी लेंगे, जो भी पैसा आएगा वो आपका होगा। सिमिलरली 1994 में सेलुलर लाइसेंसेस दिए गए। नाउ दिस इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ पीपीपी बिकॉज यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट कम टुगेदर, बट द लाइसेंसेस वर गिवन टूवर्ड्स with a vision towards to move towards privatization. However, जो हमारा BSNL है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है थ्रू पीपीपी बाय कंबाइनिंग इट्स फंक्शंस विद अ लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। ओके, 1995 में सिमिलरली हाईवेज में प्राइवेट सपोर्ट स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ विच वी कुड बिल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अगर हम ये पीपीपी मॉडल अडॉप्ट नहीं करते, वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रिएट दीज वंडरफुल हाईवेज जिसके बेसिस पे हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज टिका हुआ है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत सिंपल से फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया है हाउ आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स द एंटायर पीपीपी स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। हैविंग अंडरस्टूड दिस, लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पीपीपी, जिसके बाद हम लोग मॉडल्स पे आएंगे विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लुकिंग बट अ वेरी सिंपल method of understanding how PPP actually functions in our country. Pros and cons को एक बार समझ लेते हैं। अब PPP के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहला जो फायदा है that is efficiency. Taking the example of L&T again, L&T is efficient in creating roads, in creating highways, in creating bridges. Why should the government try and do it? जैसे सत्येंद्रनाथ दुबे की आपने कहानी सुनी होगी, who was killed because of the contractors who were involved in creating roads in UP. ऐसे माफिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लाइक L&T। तो वो एफिशिएंसी भी लेके आता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? दे आर एबल टू क्रिएट द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत कम समय में उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा, उतना ही यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाते हैं। इफ द पब्लिक सेक्टर गेट्स इन्वॉल्व इन इट, उसको वही काम करने में डबल टाइम या ट्रिपल टाइम भी लग सकता है, एंड ऑटोमेटिकली द क्वालिटी ऑल्सो सफर्स बिकॉज ऑफ दैट डिले। ओके, सेकेंड, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर connected with the first one only. The first point was talking about time, the second one is talking about quality. जो क्वालिटी हमें आज मिलती है अपने देश में, it would not have been possible if we had not taken the route of PPP. Okay, if you talk about the power sector, दिल्ली में पावर 24 घंटे और नियर 24 आवर्स आपको मिलती है। लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। आई एम एबल टू टीच यू गाइज वेल विदाउट एनी नीड ऑफ एनी स्टेबलाइजर और एनी इन्वर्टर सिस्टम्स इन माई ऑफिस प्योरली बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि टाटा पावर यहाँ पे बहुत रीजनेबल दामों में इट इज एबल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पावर, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू द कंज्यूमर्स लाइक मी एंड लाइक यू। ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर पाता। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, और हम लोग रहा करते थे उत्तर प्रदेश में, वी हैड टू गेट अप एट 2 AM 3 AM इन द मॉर्निंग बिकॉज सुबह सुबह 2 बजे लाइट चली जाती थी, एंड देन द एंटायर कम्युनिटी वुड हैव टू गो टू द पावर स्टेशन और वहां पे जाके लड़ाइयाँ करते थे, प्लीज इसको पावर को वापस चलाइए, वी हैव टू स्लीप ऑल्सो, सोएंगे नहीं तो सुबह काम पे कैसे जाएंगे। दैट वॉज द कंडीशन ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर पीपीपी केम अलॉन्ग। थर्ड पॉइंट, बेटर मेंटेनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर खाली डेवलप करने से काम खत्म नहीं हो जाता है, यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन इट। इनफैक्ट मेंटेनेंस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन की बात कर लीजिए, जस्ट क्रिएटिंग द क्लासरूम्स इज नॉट इनफ, यू हैव टू टेक अनदर स्टेप, create the right teachers, train the right teachers, make sure that they are coming into the classrooms, make sure that the classrooms are good enough and maintained well so that the students are also coming. Midday meal provide करना है तो वो regularly provide हो रहा है. All these things form a part of maintenance. The private sector is able to do it better because वहाँ पर private sector का incentive होता है कि उनको वहाँ से profit मिलेगा. The public sector, it has been seen in the past, especially in social welfare schemes या फिर programs या फिर sectors में, public sector finds it difficult to maintain infrastructure. Viability of public projects, बहुत सारे public projects हैं जो कि viable नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पे फंड्स क्रिएट करना या उससे रिटर्न्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है और अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे कि एजुकेशन में मान लीजिए, स्कूल्स, अगर इफ द गवर्नमेंट क्रिएट स्कूल्स, द गवर्नमेंट कैन नॉट इन एनी वे गेट अ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में उसको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ बेटर लेबर फोर्स,
बट शॉर्ट रन में उसको रिटर्न नहीं मिलेगा इन मॉनेटरी टर्म्स. तो दिस वायबिलिटी becomes a problem for various projects. तो projects complete ही नहीं होते. When the public sector and the private sector come together, then these projects have a higher chance of becoming more viable. For example, आपने एक स्कूल क्रिएट किया, आपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ एक स्कूल को क्रिएट किया. नाउ इन ऑर्डर टू गिव द रिटर्न टू द प्राइवेट पार्टी, आपने बोला स्कूल का 1/10 एरिया हम आपको देंगे, आप वहां पे एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करिए और उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आप स्पोर्ट्स क्रिएट करिए, नॉर्मल शॉप्स लगाइए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं. दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. The private sector is happy because it now understands that it can get a return on its investment of creating infrastructure in that school through that 1/10 of the land. That is just one example of how things can be done to make the public projects more viable. New technology. Private sector has been known to adopt new technology better than the public sector. The public sector is a bureaucratic system जो कि बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कुछ भी नए चेंज को लाने में बहुत टाइम लगता है. Imagine that instead of a family of 5 people, there is a family of 50 people that you live in. अब क्या होगा, आपको कुछ भी अगर नया काम करना है, let's say you want to be a photographer today and you have to get permission of the entire family. Instead of trying to convince 4 other people, you have to now try and convince 49 other people. It's going to be so difficult. Let's say आपको एक फाइल क्रिएट करके वो फाइल you have to put it forward in front of those 49 people. जब वो अप्रूव करेंगे तभी वो काम आगे चलेगा. It will be so much more difficult. Why? Because the system has become larger. The same happens with the government because the public sector is such a large system. It becomes all the more difficult for the system to adopt to new technology. But the same does not happen in the private sector because it is more lean, it is more organized in such a way that they can adopt new technologies faster. New private companies are created as a result of PPP. That automatically results in more employment for the system, for the economy as a whole. L&T जैसी कंपनी, टाटा पावर जैसी कंपनीज, पोर्ट्स क्रिएट करने वाली कंपनीज जब बनती हैं, दे ऑल्सो हायर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट. वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है मास अमाउंट में बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट दीज थिंग्स फास्टर, दे वॉन्ट टू बी एफिशिएंट, दे वॉन्ट टू बी प्रॉफिटेबल, दे वॉन्ट टू मेंटेन क्वालिटी अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड. तो वो जल्दी से बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, देन दे मूव टुवर्ड समथिंग एल्स. Automatically employment generation is faster, it's much better than going forward towards the public sector. स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं जेई के लिए भी, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं मेडिकल के लिए भी, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डू इट, आई डू नॉट हैव स्पेशलाइजेशन इन इट. आई कैन ओनली टीच यू सर्टन सब्जेक्ट्स इन सर्टन एरियाज फॉर यूपीएससी और कनेक्टेड एग्जामिनेशंस जो कि बहुत स्ट्रांगली अलाइंड हैं यूपीएससी से. दैट is specialization. The public sector has that specialization. If the government says that we can run Air India also, we can run HMT also, we can run BSNL also, specialization cannot be created. One government system cannot take care of everything that happens in an economy, all these different kinds of companies. So the private sector brings in specialization, and this acceptance and appreciation of specialization automatically results in advancement of an economy. Last point है FDI. जैसे ही प्राइवेट सेक्टर अंदर आता है, because of all these 7 advantages, the foreign sector or the foreign investors say, oh, this looks like a profitable entity, this looks like a profitable project, this looks like a profitable country जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं. कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है सिटिंग समवेयर इन चाइना, सिटिंग समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम हैं, वहां पे 4% 5% रिटर्न मिलता है. उस इन्वेस्टर का जो ब्रोकर है वो बोलता है व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन एल&टी इन इंडिया, और आपको रिटर्न आराम से मिल जाएगा 15-16%. द इन्वेस्टर सेज ऑटोमेटिकली यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, दिस काइंड ऑफ एफिशिएंसी, दिस काइंड ऑफ इनकमिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ एफडीआई. एफडीआई का मेजर फायदा क्या है? मेजर फायदा ये है कि आपके पास as a nation you have limited resources. Let's say right now there is a resource pool of 1 lakh crore that can be invested in infrastructure. बहुत crude terms में बोले तो FDI comes in and says we are ready to pump in another 1 lakh crore. आप लोग इन्वेस्ट करिए, हमको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आप इतना हिस्सा दे दीजिएगा. Automatically your resource pool has expanded. Instead of 1 lakh crore now you have 2 lakh crores. You can invest this money in a lot of new projects.
you can grow faster, you can provide better facilities to the people in a much faster way. जिस काम को करने में आपको 10 साल लगता है, now it will take just 5 years or 4 years, half the time to do that kind of work. Automatically the economy grows faster, develops faster. So these are the major advantages of public private partnership, but it is not all hunky dory, it is not all good. There are certain disadvantages also which come along with this collusion, along with this partnership. What are these disadvantages? Number one, transfer of government responsibility to people. अब हम indirectly क्या कर रहे हैं? The government, by saying that the private sector can build infrastructure, can build that road, and now it can recover its costs by creating a toll plaza. कैसे ही आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, उसके ऊपर जैसे ही आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, you can close that toll plaza. What has the government done? The government has already taken taxes from us as the people. Upon that, the government is also putting the pressure of that road, of that infrastructure project on the people itself. So the government's responsibility was to use those taxes or a part of those taxes to create infrastructure. But उन्होंने वो काम नहीं किया, indirectly वो भी लोगों के ऊपर ही डाल दिया. So now the government becomes lackadaisical. Now the government becomes more laid back because it knows कि ये infrastructure project तो private sector बना लेगा and the money can be recovered from the people. This is a transfer of government responsibility towards the people, and this sets a wrong precedent because now the government realizes कि हम लोग जो taxes लेते हैं लोगों से, we can use that whatever way we want because all these projects, all these basic requirements of people can be taken care of the private sector and the people are ready to pay. ये लोग दे देंगे इसको. Second, crony capitalism. This is a very important word जो हो सकता है a lot of people who are watching this might not be aware about this. This is when capitalism results in crony capitalism. Why? Because the capitalism का मतलब होता है private entities. The private entities, when they collude with the government on the basis of anything other than merit. Merit को छोड़ के किसी और भी basis पे, when the government and the private sector come together and create something or don't create something, but ultimately it results in benefits to only that private company as well as probably the government to certain section, then it becomes crony capitalism. Very big example जो आजकल चल रहा है न्यूज़ में, अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे allegations लगते हैं that these people get an advantage on any new project that comes up. Why? Because they have good connections with the government. That can be said as an allegation of crony capitalism. There might be a startup which might be even better than Adani's or Reliance in creating some infrastructure, in creating some new project. But because these companies already have connections with the government, so any factor other than merit comes in. Merit is not the only factor now that is being used by the government in order to award these projects. Other factors also come in, and this results in crony capitalism, where the benefits of these projects go towards a certain people, a certain interested parties, and not to the country as a whole. Okay. Environmental damage. ये देखा गया, it has been seen that when these projects are given to the private sector, then audit responsibilities are surpassed at times, and that often results in environmental damage. तो environmental audit नहीं किया जाता है, बहुत corruption होता है, people are bribed in order to make sure that environmental audit is either surpassed or approved without actually having to look at the impact of that project on the environment. तो ये environmental damages हो रहे हैं. This becomes very important because of the kind of climate change that we are witnessing now. Okay. Quality versus profits. When the regulation of the government is not strong enough, then there is a mismatch between these two, quality and profits. The companies try to move towards profits, and when they realize that they have to or they can actually move down their quality, they need not fulfill the quality standards because the regulation is not strong enough. They go towards higher profits. That results in bad quality and more profits to a limited class of people, that is these private companies. Okay. Ultimately, the people suffer because of these disadvantages. Let's come to the most difficult, the most challenging part of PPP, which is models of PPP. कौन कौन से models हैं major PPP में जो आए हैं अभी तक और जो use होते हैं. Now let me give you
a disclaimer before we start with the models that a majority of these models also have a lot of overlaps. तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बीटीएल कंप्लीटली डिफरेंट है, देयर विल बी ओवरलैप्स. हर स्टेट अलग अलग मॉडल यूज करती है, हर एक एंटिटी, हर एक गवर्नमेंट अपना एक मॉडल यूज करने की कोशिश करती है विच इट फाइंड्स मोर सूटेबल टू इट्स कंडीशंस. ओके, तो बहुत सारे ओवरलैप्स आपको देखेंगे इन मॉडल्स में. ऐसा नहीं है कि सारे मॉडल बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर 1, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. मैंने डिवाइड किया है इनको एक्सप्लेन करने के लिए इन 4 पार्ट्स में. द फोर्थ पार्ट इज एग्जाम्पल. फर्स्ट पार्ट इज ओनरशिप. ओनरशिप किसके पास रहेगी? उस प्रोजेक्ट. लेट्स से यू क्रिएटिंग अ हाईवे और अ ब्रिज, तो उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? लेट्स से यू क्रिएटिंग अ पोर्ट, तो उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हु विल मेक द इन्वेस्टमेंट? मेंटेनेंस कौन करेगा उसकी? एज आई सेड, इन्वेस्टमेंट इज इजी, क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इजी, बट मेंटेनेंस इज मोर डिफिकल्ट. तो मेंटेनेंस कौन करेगा? एंड द पॉसिबल एग्जाम्पल्स जिससे हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरह से आप देख सकते हो हमारे आसपास होते हुए. ओके, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक ऐसा पीपीपी मॉडल है जिसमें ओनरशिप पब्लिक के पास रहती है. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट मेंटेन्स दी ओनरशिप. द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मेड बाय द पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट इटसेल्फ, एंड द मेंटेनेंस इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो हमने दो चीज यहाँ पे देखी कि एक मिनट, यस, तो इस तरह से मूव हो गया था. तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज द सिंपलिस्टिक, मोस्ट सिंपलिस्टिक एंड द मोस्ट सेफ काइंड ऑफ अ पीपीपी मॉडल, जहां पे इन्वेस्टमेंट भी पब्लिक सेक्टर कर रहा है, द कंस्ट्रक्शन और द implementation of the project is done by the private sector, but investment is done by the public sector. Ownership also lies with the public sector because नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है तो ओनरशिप वही रखेंगे. मेंटेनेंस इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. हम बोलते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आपको, आप बनाइए, हम पैसा देंगे, वी विल हैव द ओनरशिप, यू कैन मेंटेन इट लेटर एंड विल गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ मनी एवरी ईयर टू मेंटेन इट, और स्टार्टिंग में बनाने का भी हम आपको कुछ पैसा देंगे. This is a very simple kind of contract between the public and the private sector. I hope this is clear. बहुत simple है, कुछ rocket science नहीं है इसमें. The second one is leasing. Leasing में क्या होता है? Ownership public के पास है, investment भी public sector लगा रहा है, maintenance private sector कर रहा है. Leasing में now that project is created by the private sector, but उसकी investment public sector ने की है, investment public sector ने की है, government ने की है. Creation is done by the private sector. Maintenance is also to be done by the private sector, but it changes here because instead of the government owning it, the government says we are going to lease it out to you. Ownership, ultimate ownership हमारी है, but हम आपको लीज पे देंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये लीजिंग हो गया. दिस इज हाउ इट डिफर्स. तो हाईवेज जो है वो एक एग्जाम्पल है जहां पे लीजिंग चलती थी, अभी भी कुछ एरियाज में आपको दिखती है, बट इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट बिकॉज when the investment is done by the public sector, not by the private sector becomes less efficient because उनका अपना पैसा नहीं लगा है. ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो बढ़ती चली जाती है बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन बाय द पब्लिक सेक्टर. ओनरशिप भी पब्लिक की है, मेंटेनेंस प्राइवेट सेक्टर के पास गई है इन द फॉर्म ऑफ लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. बिल्ड लीज ट्रांसफर या बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर. BLT या BOLT जिसको हम बोल सकते हैं, दो अलग अलग जो विच आर वेरी सिमिलर. बिल्ड लीज ट्रांसफर और बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, ये दो इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं. यहां पे क्या हो रहा है, अब इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं. बिल्ड लीज ट्रांसफर, सबसे पहले बिल्ड किया. बिल्ड किसने किया? प्राइवेट सेक्टर ने. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने लीज किया. पब्लिक सेक्टर लीज नहीं कर रहा है. लीजिंग में द पब्लिक सेक्टर, बिकॉज द पब्लिक सेक्टर वाज इन्वेस्टिंग, सो द पब्लिक सेक्टर वाज लीजिंग. यहां पे द पब्लिक सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग, द प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग, सो द प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू लीज इट. ओनरशिप ऑल्सो गोज टू द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर हैज पुट इन द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मैंने डाली एज अ प्राइवेट एंटिटी, ओनरशिप मेरी है, बट नाउ आई हैव द राइट टू लीज इट टू द गवर्नमेंट. ठीक है ना. जब लीज कर दिया तो या तो पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट विल मेंटेन इट, और द गवर्नमेंट कैन आल्सो से यू ओनली मेंटेन इट. आपने हमको लीज किया है ऑन पेपर, सो ओनरशिप मेंटेन्स स्टेज विद यू, बट द लीज फॉर द नेक्स्ट 10 years इज विद मी एज द गवर्नमेंट. ओके,
यहाँ पे क्या होता है, आउटलेट्स एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के जो आउटलेट्स हैं वहां पे ये देखा गया है, दिस मॉडल इज बीइंग फॉलोड, बिल्ड लीज ट्रांसफर या बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर। तो बिल्ड भी प्राइवेट सेक्टर ने किया, इट इज ऑल्सो ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, it is leased to the government sector, and then ultimately after a certain point of time, 50 years, 100 years, it can be transferred back to the government sector. I hope this is clear. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, बिल्ड ट्रांसफर लीज, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, बिल्ड ट्रांसफर लीज। यहां पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली सबसे पहले बिल्ड किया, बिल्ड किसने किया, प्राइवेट सेक्टर ने, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। जब मैं बिल्ड कर रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आई एम इन्वेस्टिंग इट, ओके, बट it is transferred to the public sector. Immediately after building it, the contract says in this kind of PPP partnership, build, transfer, lease, that I'm going to transfer it to the government sector immediately, and then the government can lease it out to me. The government has the right to then lease it out to me, और ये नॉर्मली देखा गया है हाईवेज में, हाईवे के टोल्स में देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर ने क्रिएट किया, बिल्ड किया, प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया, तो पब्लिक सेक्टर पेज मनी अप फ्रंट, या फिर पब्लिक सेक्टर बोलेगा आप हमें ट्रांसफर करो, बट यू कैन रिकवर द मनी थ्रू दीज टोल प्लाजा, आप रिकवर कर लो अपना पैसा टोल प्लाजा से, जो कि दिल्ली गुड़गांव वाले हाईवे पे जो टोल था उसमें देखा गया था। इट वॉज बिल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट वॉज ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट सेक्टर, बट द प्राइवेट सेक्टर वॉज रिकवरिंग द मनी थ्रू टोल्स। So this was the contract that was followed. Built, it was transferred to the government already, but it stayed with the private sector because they had to recover their money, and that was done through leasing. So built, transferred, but the leasing is given to the private sector so that they can recover the money. Okay, I hope this is clear. उसके बाद आ जाते हैं एरिया कंसेशन में। एरिया कंसेशन में एक पूरे एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है। टाटा पावर और इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जहां पे ये देखा जाता है, बिकॉज इफ यू वांट टू प्रोवाइड गुड इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया, अ सिटी और अ टाउन, तो आपको पूरे टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी को देनी पड़ेगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे नॉर्मली वी हैव सीन ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय द प्राइवेट सेक्टर। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड में डिफरेंस क्या है? इन ब्राउनफील्ड you do not create something from scratch. Let's say there's already a private company जो कि function करती है छोटे छोटे areas में, it is already providing electricity, it already has some infrastructure. The government comes in and says let's get into an area concession contract, हम पूरी city का contract आपको दे देते हैं, you expand this infrastructure, अपना जो existing infrastructure है उसको expand करो, उसको भी use करो and create something better so that we can provide better electricity to the people. दिल्ली में एरिया कंसेशन आपको देखने को मिलता है, टाटा पावर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू सर्टेन एरियाज, और टाटा पावर पहले से काम करता आया है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, दे हैव एक्सपैंडेड। ओके, पब्लिक सेक्टर जो है, ओनरशिप पब्लिक सेक्टर के पास रहती है, बट द मेजर पर्पस ऑफ दिस इज टू रेगुलेट द प्राइस एंड क्वालिटी। जैसे कि दिल्ली में भी द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर डिसाइडेड एंड डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी। अगर ऐसा हो जाएगा तो टाटा पावर माइट इंक्रीज द प्राइसेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द गवर्नमेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द प्राइस एंड क्वालिटी। डिजाइन, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारा प्राइवेट सेक्टर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जिसका वो रिकवरी करता है बाय सेलिंग दैट प्रोडक्ट, सेलिंग दैट सर्विस। ओके, अब आ जाते हैं ये लास्ट के 4 मॉडल्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज these are in news and these are now often used by various private companies in collusion with the government for various projects. Build, operate, transfer, बहुत सिंपल सा है। बिल्ड किया मैंने एज द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स करता है प्राइवेट सेक्टर, बिल्ड किया, आई एम द वन ऑपरेटिंग इट, तो मेंटेनेंस प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, बट आई हैव टू ट्रांसफर इट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बैक टू द गवर्नमेंट। मैंने बिल्ड किया, मैं ऑपरेट कर रहा हूं, बट कुछ समय बाद आई हैव टू ट्रांसफर इट बैक टू द गवर्नमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया जाता है। एज सुन एज यू रिकवर योर मनी, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट। बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर। अब बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर के साथ ओन और ऐड कर दिया, दैट मीन्स द प्राइवेट सेक्टर ओन्स इट। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ओन कर रहा था, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप है, so the private sector creates it, private sector owns it, private sector maintains it, and then eventually it has to transfer it back to the government
आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। पोर्ट्स में ये देखा गया है कि आप बिल्ड करो, आप ही ओन करो, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज मैसिव। यहाँ इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ की नहीं है, 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। सो यू ओन इट, यू बिल्ड इट, यू ओन इट, यू ऑपरेट इट, आफ्टर 100 ईयर्स यू गिव इट बैक टू अस एज द गवर्नमेंट। और उसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं इफ यू डू इट वेल। दिस इज हाउ BOOT फंक्शंस। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये किस तरह से काम करता है? यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट ये सब की एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है। तो द इन्वेस्टमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर, द ओनरशिप स्टेज विद द पब्लिक सेक्टर, ओनली द मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को पता है क्या इंजीनियरिंग यूज हुई है, क्या सामान यूज हुआ है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। सो ऑल ऑफ दैट is taken care of by the private sector. Expertise and specialization lies with the private sector. So maintenance private sector करेगा, but initial investment as well as the ownership stays with the public sector. Very similar to the first one or second one that we saw, management contract वगैरह, वहां पर भी इसी तरह से काम हो रहा था. This is a new way of saying the same thing. EPC contracts आजकल follow होते हैं. And the last one is HAM, hybrid annuity model, which is a culmination of EPC and BOT. बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड ईपीसी को कंबाइन करके हमने हैम बना दिया। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा हैं, वेरी हाई चांसेस ऑफ इट बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीओटी एंड ईपीसी। बीओटी और ईपीसी दोनों में ओनरशिप स्टेज विद द पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पर भी ओनरशिप स्टेज विद द पब्लिक सेक्टर। इन बीओटी वी सॉ दैट द इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, here we saw investment is done by the public sector, दोनों को मिक्स कर दिया, बोल दिया प्राइवेट सेक्टर आप 60% दो, गवर्नमेंट विल गिव 40%। इस तरह से हमने हाइब्रिड बना दिया, दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। अब सरकार बोलती है हम ये 40% वन गो में नहीं देंगे, ठीक है ना, हर साल हम आपको 10% देंगे। तो इन द नेक्स्ट 4 years विल गिव यू 10% एवरी ईयर, और आपको इसके अगेंस्ट यू हैव टू बिल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सर्टेन लेवल अचीव करना पड़ेगा, then only we will give you this 10% every year. तो ये हो गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का कोर, दिस इज द कोर ऑफ दिस। ओके, यहां पर मेंटेनेंस बाय द प्राइवेट सेक्टर, यहां पर भी प्राइवेट सेक्टर, तो ऑटोमेटिकल है यहां पर भी प्राइवेट सेक्टर टिल रिकवरी। रिकवरी के बाद वो पब्लिक सेक्टर के पास चला जाता है, बिकॉज द पब्लिक सेक्टर हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दिस, इन्वेस्टमेंट उनकी भी है। हाईवेज में हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल देख रहे हैं, बिकॉज द बिगर द हाईवेज द लार्जर द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली the private sector cannot do it on their own, तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, WGF। वो मैं चाहता हूं कि आप गूगल करके समझने की कोशिश करें, हाउ इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कनेक्टेड विद VGF, और फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, जिससे कि मुझे समझ आए कि आपको एग्जैक्टली HAM और VGF समझ आया भी है या नहीं आया है। So this was all about the entire PPP model. बहुत बेसिक फॉर्मेट में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि PPP मॉडल क्या है, हाउ डज इट फंक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स अंडर इट, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मॉडल, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू नाउ गो थ्रू विद द PPP मॉडल. Okay, if you have any doubts, you can ask me these doubts in the comment section below. I will reach out to you very soon with a lot of other videos related to UPSC examination. All the best guys, take care, bye bye, Jai Hind.